اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور ہر جمعرات کو رات میں اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے شہید حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کا پیغام اور ملک میں ان کے نام پر پھیل رہی نفرتوں کو لے کر بہت اہم بیان ہوگا۔ ہر ہندو اور ہر مسلمان اس بیان کو سنیں، اور مسلمان تو اس لیے ضرور سنیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کو ہمارے ان بزرگوں کی تاریخ اور ہسٹری نہیں بتایا تو آنے والی جو نسل ہے جو فیس بک اور واٹس ایپ اور پب جی میں لگی ہوئی ہے، آنے والی اس نسل کو ہمارے بزرگوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں پڑے گا۔ اس لیے آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر حضرت شہید ٹیپو سلطان کی زندگی پر اہم بیان ضرور سنیں۔ ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا جو میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ آج سے حماس اور اسرائیل میں 4 روزہ جنگ بندی ہو رہی ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک قسم کی اسرائیل کی اور امریکہ کی اور تمام ہی اسلام دشمن، مسلمان دشمن اور فلسطین دشمن طاقتوں کی ایک قسم کی ہار ہے۔ جی ہاں، 4 روزہ جنگ بندی یہ حماس کی، مجاہدین کی جیت اور اسرائیل کی اور امریکہ کی ہار ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کی قید سے 150 فلسطینی بچے اور عورتوں کو رہا کیا جائے گا، اور حماس 50 اسرائیلیوں کو چھوڑے گا۔ نیتن یاہو نے جنگ بندی کے بعد بھی غزہ پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں عارضی ٹیمپریری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا ایگریمنٹ معاہدہ ہو گیا ہے، مگر قطر کی ثالثی سے ہونے والے اس معاہدے پر عمل درآمد فوری طور پر نہیں ہوگا۔ در حقیقت غزہ جنگ میں وقفے کے آغاز کے وقت کا اعلان 23 نومبر کو یعنی آج ہوگا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اس ایگریمنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ غزہ میں جنگ بندی کے آغاز کے وقت کا اعلان آئندہ یعنی 24 گھنٹوں میں ہوگا، اور یہ وقفہ 4 دن تک برقرار رہے گا۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ جنگ بندی کا آغاز
23 नवंबर यानी आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे होगा। इस वक्फे के दौरान हमास की जानिब से मरहलावार 50 खवातीन और बच्चों जिनकी उम्र 19 साल से कम है उनको रिहा किया जाएगा। दूसरी जानिब इजराइल की जानिब से 150 फलस्तीनी बच्चों यानी 19 साल से कम उम्र और खवातीन को रिहा किया जाएगा। कैदियों का ये तबादला हिलाल अहमर, इजराइल, कतर और हमास की मुआवनत से मदद से अमल में आएगा। कैदियों के तबादले के बाद गजा में इमदादी सामान की फराहमी को बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब इजराइल का कहना है कि जंग बंदी के इख्तिताम पर गजा में फिर से फौजी कार्रवाइयों का आगाज होगा। आइए बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ न्यूयॉर्क से आ रही है, लेकिन इसका ताल्लुक हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से है। जी हाँ, ये हिंदुस्तान में रहने वाले अंधभक्त और गोबर भक्त और मुसलमान दुश्मनों के लिए यह खबर बिजली की तरह बनकर गिरेगी। जी हाँ, खबर यह है कि हिंदुस्तान ने, हमारे इस प्यारे मुल्क ने फलस्तीन के समर्थन में, फलस्तीन के सपोर्ट और हिमायत में अक़वाम मुत्तहदा में UNO में आवाज उठाई। फलस्तीन एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है, इस तरीके से हिंदुस्तान ने वकालत किया। अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली, UNO की जनरल असम्बली में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा ने फलस्तीन के अलग मुल्क के मुतालबे को दोहराया है। उन्होंने मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेकाम की बहाली के लिए तमाम फरीक़ैन को काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इजराइल हमास तनाज़े में जंगबंदी और फलस्तीन के लिए फौरी इंसानी इमदाद का भी खैर मकदम किया। मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान पहले ही से फलस्तीन की पॉलिसी के हक में, फलस्तीन के अलग मुल्क होने और उनका ही फलस्तीन की ज़मीन उनकी ही फलस्तीनियों की अरबों की ज़मीन है, इसके हक में हमारा मुल्क हिंदुस्तान पहले से ही रहा है। और गुज़िश्ता कल भी अक़वाम मुत्तहदा में हिंदुस्तान ने फलस्तीन की हिमायत में ही आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी तीसरी बड़ी खबर भी इजराइल के और हमास की जंग को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, इजराइल का आतंकवाद और अमेरिका का आतंकवाद अब खुलकर पूरी दुनिया को नजर आ गया। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इजराइल के आतंकवाद और इजराइल की वहशियाना बमबारी और हमलों की वजह से फलस्तीनियों की शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,000 से ऊपर चली गई। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में इजरायली आतंकवादी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,128 से ऊपर हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद भी 33,000 से ऊपर पहुंच गई है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक गजा के अस्पतालों से काहिरा लाए गए 28 फलस्तीनी नौमौलूद बच्चों की हालत खतरे से बाहर नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि इसका नतीजा ये निकला कि इजराइल और अमेरिका खुले आतंकवादी है, ये पूरी दुनिया को खबर हो गई। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है कि जनूबी अफ्रीका ने इजरायली सफारत खाना बंद करने की करारदाद को मंजूर कर लिया। अल्लाह करे कि दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्कों को भी शर्म आए, गैरत आए और वो अपने अपने मुल्क में इजरायली सफारत खाने को बंद कर दें, तो मजा आ जाएगा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इमरान खान यानी पाकिस्तान के एक्स PM साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी मलिक पर
मुल्क छोड़ने की पाबंदी की सिफारिश की खबर आ रही है। पाकिस्तान के रिगडा हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई मरकजी रहनुमाओं पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। वफाकी वज़ारत दाखिला के हुक्काम ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि यह सिफारिश बुध को काबीना की एक ज़ेली कमेटी के इजलास के दौरान किए गए फैसले के नतीजे में की गई है। वज़ारत दाखिला के एक आला ओहदेदार ने बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा यह पाबंदी इमरान खान के करीबी साथी अली अमीन, ऐसी बुशरा बीबी के दोस्त फराह शहजादी और पीटीआई के तमाम मरकजी ओहदेदारों पर लगाई गई है। यानी तहरीक इंसाफ पार्टी के जितने मरकजी ओहदेदार हैं उनको भी पाबंदी लगा दी गई है, वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। ताहम वजारत के हुक्काम ने दीगर अफराद के नाम जारी नहीं किए और सिर्फ इतना बताया है कि तमाम जाने पहचाने रहनुमाओं पर पाबंदी लगाई गई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि मंगल के रोज ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस के रहनुमाओं का एक रोजा गैर मामूली बड़ा अहम इजलास हुआ। इस इजलास में ब्रिक्स रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। अरे कमबख्तो, 50 दिन हो गए हैं, 14,000 से ऊपर बेकसूर फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, 6,000 के करीब बच्चे, 5,000 के करीब औरतें मारी जा चुकी है और अब तक के तुम सिर्फ मुतालबे ही कर रहे हो। अरे मैदान में आकर इजराइल को खत्म करने की बात करो। खैर, ब्रिक्स रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया और जुनूबी अफ्रीका ने नस्ल कुशी की मजम्मत की, यानी इजराइल के आतंकवाद पर मजम्मत की है। जुनूबी अफ्रीका के सदर ने कहा कि इजराइल की जानिब से ताकत का नाजायज, नापाक और गैर कानूनी इस्तेमाल के जरिए फलस्तीनी शहरियों को सजा देना ये जंगी जुर्म है। गजा के शहरियों को जानबूझकर मेडिसिन, ईंधन, खुराक, फूड्स और पानी से महरूम करना यह नस्ल कुशी के बराबर है। जुनूबी अफ्रीका ने इसकी मजम्मत की। वहीं पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ब्रिक्स इजलास से खिताब करते हुए फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया और इजराइल को असलाह की सप्लाई बंद की जाए, ऐसी बात उन्होंने कही है। वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि इजरायली आतंकवादी फौज की बमबारी में हमास सरबराह इस्माइल हानिया का बड़ा पोता भी शहीद हो गया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया के पोते जमाल मोहम्मद हानिया मंगल को गजा में इजरायली फोर्सेस की बमबारी से शहीद हुए हैं, ऐसी खबरें भी आ रही है। इस्माइल हानिया की पोती भी इजरायली बमबारी में शहीद हो चुकी है।